अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में स्ट्रॉन्ग इंडक्शन के थ्रू इस एग्जांपल को या इस प्रोपोजिशन को प्रूव करना सिखाऊंगा। ओके, इन स्ट्रॉन्ग इंडक्शन three steps are to be followed. Procedure is step number 1. You have to prove predicate logic for say n is equal to 0 or whatever the minimum natural number is being used or is being mentioned in the question. Second step is to assume the predicate logic p of n to be true for n less than equal to k greater than equal to say 0. And in the third step you have to prove predicate logic p of n for n is equal to k plus 1. Okay, so वीक इंडक्शन में या सिंपल इंडक्शन में आपको याद होगा कि जो प्रोसीजर था प्रूव करने का वो ये है कि आपने n is equal to k plus 1 को प्रूव करना है. I mean you have to prove that p of n is true for n is equal to k plus 1. उसको प्रूव करने के लिए you have to assume that p of k is true. ठीक है, you have to assume, you have to prove this to be true. You have to prove p of n to be true for n is equal to k plus 1. And the first step was to prove p of 0 to be true. The first step was to prove p of 0 to be true in simple induction. Whereas in strong induction you have to repeat the similar steps. Step 1 is same as was in simple induction. Even जो step 3 है वो भी सेम है, बस ये एक डिफरेंस जो है वो step 2 में है. और वो डिफरेंस ये है कि नाउ आपने p of n को प्रूव अज्यूम करना है कि वो ट्रू है, अज्यूम करना है कि वो ट्रू है फॉर values of n starting from 0 to all the way up to k. So you have to assume that कि ये सारे डोमिनो ब्लॉक्स जो हैं वो गिर गए हैं और फिर आपने प्रूव करना है कि ये वाला डोमिनो ब्लॉक जो है वो गिर जाएगा. जब आप ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे कि ये वाला डोमिनो ब्लॉक जो है गिर गया है, तो इट मीन्स दैट इस डोमिनो ब्लॉक से आगे जितने भी डोमिनो ब्लॉक्स हैं ऑल द वे अप टू द लास्ट डोमिनो ब्लॉक वो सब के सब गिर गए हैं. तो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में बस ये एक डिफरेंस है कि स्टेप नंबर 2 में यू हैव टू प्रूव द प्रेडिकेट लॉजिक p ऑफ n टू बी ट्रू फॉर n इन दिस रेंज, n इज इक्वल टू 0 से लेके k तक. ओके, सो वेयर यहाँ पे एक साइड नोट ये है कि k शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0.
ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन सो दैट आपको मज़ीद अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए. ओके, सो क्वेश्चन इज़ एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड 1. ओके, सो इसको आपने करना है सॉल्व स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से. सो अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग इंडक्शन द फर्स्ट स्टेप इज़ टू is the base case. Step 1 is the base case. और बेस केस वाले स्टेप में आपने क्या करना है, बेस केस वाले स्टेप में आपने प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट p ऑफ 0 या p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू. हाँ जी, सो फॉर n इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है n इज़ इक्वल टू 0, but in the question it is given that the minimum value of natural number to be used is 2. so इस केस में आपने 0 नहीं लेना बल्कि आपने 2 लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है, ऑब्वियस भी है, मेंशन भी है. सो यू हैव टू प्रूव दैट p of n is true. okay, so what is p of n in for this question? so the p of n for this question will be predicate logic will be n can be, question में given है, ठीक है, ये n can be written as product of primes and 1. n can be written as product of primes and 1. ठीक है. Okay, so this is the predicate. This is the predicate for this question. और बेसिकली इस स्टेप को पहले आना चाहिए था, इससे बेस केस से पहले यहाँ पे. Okay, so in base case step put n is equal to 2 and say this is you can say this is expression 1. so put n is equal to 1 sorry, n is equal to 2 in this expression 1. so this will be p of 1, p of 2 is equal to 2 can be written as product of primes and 1. okay, अब you have to prove that this statement is true. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, p of n is true for n is equal to 2. इसका मतलब ये, इसका दूसरा मतलब जो है वो ये है कि you have to prove that 2 can be written as product of primes and 1. so अब आप अपने आप से पूछो कि क्या 2 जो है, can you write 2 as product of itself and 1? yes, because 2 is a prime number and all prime numbers can be written as product of itself and 1, and hence p of 2 is true. ठीक है, so आपने एग्ज़ाम में पूरी बात लिखनी है कि since 2 is a prime number and every prime number can be written as product of itself and 1, hence p of 2 is true. so now we have proved the base case. Second step is the induction hypothesis step. okay, so in induction hypothesis step what you have to do, आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने assume करना है कि p of n is true where n lies in this range. ठीक है, so you have to assume
P of n is true for n लेस देन इक्वल टू k ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें मिनिमम वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर इज़ ज़ीरो। क्वेश्चन में वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूज़ द मिनिमम वैल्यू फॉर द नेचुरल नंबर एज 2, ठीक है। सो मिनिमम नेचुरल नंबर इस क्वेश्चन में 2 है, तो यहाँ पे फिर आप ज़ीरो नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। ओके, वेयर के यहाँ पे आपने लिखना है वेयर के शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू द नेचुरल नंबर you used in the base case to prove P of n is true। सो बेस केस में जो नेचुरल नंबर आपने यूज़ किया था वो 2 है, सो आपने यहाँ पे लिखना है 2, ठीक है। सो k शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट के जो P of n है it is true for n is equal to 2 ऑल द वे अप टू k, ठीक है। सो ये समझ लीजिए ये एक नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन में मैंने 2 और 3 को शो करवाया हुआ, नेचुरल नंबर्स को शो करवाया हुआ, ठीक है। एंड से दिस इज़ नेचुरल नंबर, से कोई x है, द लास्ट नेचुरल नंबर इज़ x। सो दिस इज़ 2, दिस पॉइंट इंडिकेट्स 3, दिस पॉइंट इंडिकेट्स k। So you have assumed that P of n is true for n lying in this range, ठीक है। इस रेंज में P of n जो है वो ट्रू है। ओके, सो थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है? थर्ड स्टेप में आपने प्रूव करना है कि P of n is true for n is equal to k plus 1। Okay, so what is P of n? P of n is this predicate. So what you will do, put n is equal to k plus 1 in 1, ये एक्सप्रेशन 1। सो एक्सप्रेशन 1 क्या बनेगा? पी के प्लस 1 इज़, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपने k प्लस 1 जो है वो पुट कर देना है। सो इसकी जगह पे k प्लस 1 पुट करना है और इस n की जगह पे आपने k प्लस 1 पुट करना है। सो इट विल बी k प्लस 1 कैन बी रिटर्न as product of primes and 1। okay, so third step में I said that you have to prove P of n is true। दूसरे लफ्ज़ों में आपने क्या करना है? आपने ये प्रूव करना है कि k plus 1 can be written as product of primes and 1। okay, so now what is k? K is a natural number, ठीक है। it is a natural number। नेचुरल नंबर में आप क्या कर रहे हो? एक 1 ऐड कर रहे हो। नेचुरल नंबर प्लस 1 गिव्स यू नेचुरल नंबर। ओके, नाउ गौर करें, नेचुरल नंबर्स में कुछ नंबर्स जो हैं वो प्राइम हैं
और कुछ नंबर्स जो हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स है, जिस तरह 4 है और 6 है, इसी तरह 8 है एंड सो ऑन. सो नाउ वी हैव टू कंसिडर टू केसेस बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कुछ नंबर्स जो हैं वो प्राइम भी हैं, कुछ नंबर्स जो हैं वो कॉम्पोजिट है. एंड मे बी दिस could you know it is important to consider this thing. Okay, so if our natural number is prime, yani if k plus 1 is prime number, then prove this. ठीक है, अगर k प्लस 1 प्राइम नंबर है, सो क्या उस प्राइम नंबर को, क्या प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड 1? यस. अभी हमने बेस केस में देखा था 2. एनी प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इनटू 1. सो दिस मीन्स दैट pk plus 1 is true if k plus 1 is prime. ठीक है, because any prime number can be written as product of itself and 1. प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद होता है और एक 1 होता है. ठीक है, सो दिस फैक्ट इज ट्रू एंड हैंस pk plus 1 is true for k plus 1 when k plus 1 is prime number. हो सकता है k plus 1 जो है वो composite हो. So if k plus 1 is a composite number, तो क्या p of k plus 1 ट्रू है? क्या p of k plus 1 जो है वो ट्रू है? ये अब हमने देखना है इस केस को. ठीक है, ओके. सो सिंस k plus 1 is a composite number, यानी प्राइम नंबर नहीं है, hence what we can do, we can write k plus 1 as product of two integers, say a and b, where a is less than k plus 1 greater than 1, whereas b is also less than k plus 1 greater than 1. ठीक है, this is a well known fact for a composite number. Okay, so अब आप देखें कि जो a है, a is a number, is an integer. ठीक है, so a belongs to set of integer. इसी तरह जो b है, it belongs to set of integer. So a is also an integer, b is also an integer, and a and b, both of them, यहाँ पे आए, a and b, both of them lie in this range. ठीक है, अभी आपने कहा है कि a is less than k plus 1, यानी k is the maximum value of a, and a is greater than 1, यानी minimum value of a is 2. So a and b both lie in this range. So इनमें से कोई भी नंबर a can assume any of these number. a जो है, a की वैल्यू 2 हो सकती है, a की वैल्यू 3 हो सकती है, a की वैल्यू 4 हो सकती है, a की वैल्यू k हो सकती है. इसी तरह b की वैल्यू k हो सकती है, b की वैल्यू 4 हो सकती है, b की वैल्यू 3 हो सकती है, b की वैल्यू 2 हो सकती है. ठीक है, ओके. सो if this is clear, then can I say that जो p of a है, यानी अगर मैं a को पुट करूँ एक्सप्रेशन 1 में, n की जगह पे a पुट कर दूँ, so what is p of a then? p of a will be a can be written as product of primes
and 1. Similarly, if I put b in p of n वाली इक्वेशन या एक्सप्रेशन, यानी n की जगह पे b पुट कर लो, so the expression will be b can be written as product of primes and 1. Okay, so is this statement true? Is this statement true? Yes, this both of these statements are true. वो कैसे? वो ऐसे कि आपने स्टेप नंबर 2 में इंडक्शन हाइपोथेसिस में बताया कि ए और बी लाइज इन दिस रेंज, इट लाइज इन दिस रेंज, और ये देखें नीचे आपने बताया कि p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n इन दिस रेंज, यानी अगर a को मैं इसके अंदर पुट कर दूं, p ऑफ a is assumed to be true. If I put b in place of n, p of b is assumed to be true. So इंडक्शन हाइपोथेसिस के स्टेप में ही आपने बता दिया कि जो p ऑफ n है वो ट्रू है। कब? जब n की वैल्यू k और 2 के दरमियान हो, इंक्लूडिंग k एंड 2, और हमारी जो a की वैल्यू है और जो b की वैल्यू है वो भी k और 2 के दरमियान है, including k and 2. So it means that p of a is true, p of b is true. ये हमारी assumption थी step number 2 में. So this statement is also true, this statement is also true. दोनों statements जो हैं वो true है. So since p of a and p of b are true, but does इस स्टेटमेंट का दूसरा मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का दूसरा मतलब ये कि a कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड 1, ठीक है। सो इसको आप कहें इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट इक्वेशन 2 एज k प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। सो यहाँ पे आपने बताया कि a कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड 1। अब इस a की जगह पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड 1, और इस b की जगह पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड 1। कैसे लिखा? वो इसको देख के और इसको देख के, ठीक है। आपने यहाँ पे अज्यूम किया है कि p of a, p of b is true है। Since they are assumed to be true, you can write a as product of primes and 1 and b as primes and 1. ओके, यहाँ पे प्राइम्स डैश का मतलब है से प्राइम नंबर 1 है मल्टीप्लाइड बाय प्राइम नंबर 2 है, प्राइम नंबर 3 है, प्राइम नंबर k है, इनटू 1। सो ये वाला 1 जो है वो ये है, और ये जो प्राइम डैश है इट्स अ शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर दिस थिंग, ठीक है। सिमिलरली जो प्राइम्स डबल बार है या डबल डैश है, इट कैन बी से मे बी से P5, P6, P7, all the way up to say P Z, any notation can be used, multiplied by 1. So ये सारे, ये एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है, दिस इज़ अ प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, इनटू 1। सो ये वाला 1 जो है वो ये है, एंड प्राइम्स डैश जो है वो ये है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इनटू 1 और इनटू 1 जो है लिख सकते हैं। सो आई होप ये एक्सप्रेशन जो है वो क्लियर है आपको। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू कैन राइट सारे प्राइम नंबर्स को इकट्ठे कर दें आप। यू कैन राइट दैट k प्लस 1 इज इक्वल टू प्राइम्स डैश मल्टीप्लाइड बाय प्राइम्स
डबल डैश मल्टीप्लाइड बाय 1। इन दोनों को आप ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये प्राइम्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। सो प्राइम्स मल्टीप्लाइड बाय 1। सो व्हाट इज़ दिस प्राइम्स, प्राइम्स इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय P2, इसमें P5 भी आ जाएगा, P6 भी आ जाएगा, ऑल द वे अप टू Pk, ऑल द वे अप टू Pz, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को मैंने डिनोट किया है प्राइम्स वेरिएबल से। सो इट इज़ क्लियर, नाउ इट इज़ क्लियर दैट you can see that in this expression it is clear that नज़र आ रहा है कि k+1 is product of primes and 1, and hence pk+1 is true for when, ठीक है। रिमेंबर ये कौन सा केस है, when k+1 is composite number, ठीक है। सो दोनों केसेस में हमने प्रूव कर दिया है कि pk+1 जो है वो ट्रू है। दोनों केसेस कौन से हैं, एक तो जब k प्राइम नंबर है उसके लिए भी हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है, कि pk+1 जो है ट्रू है, और जब k+1 कॉम्पोजिट नंबर है उसके लिए भी हमने प्रूव कर दिया है कि pk+1 जो है ट्रू है। हैंस p of n is true for n is equal to k+1, चाहे k+1 प्राइम हो या ना हो। And hence since pk+1 is true, it means that p of n is true for all n belonging to natural number where n is greater than or equal to 2, and that completes our proof.